Service Act, and till now 20 states has implemented Right to Public Service Act. Government of India has also introduced bill in 2011, but it was not passed, it was lapsed. The government of Uttar Pradesh enacted Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011 on 14 January 2011 to ensure delivery of public service to the eligible person within the prescribed time limit. Objective of my study: to study and analyze the legislative measures and policy of public service delivery system in Uttar Pradesh. Second was to study the departmental setup for effective public service delivery system in Uttar Pradesh. Third objective is to analyze the adequacy of infrastructure in the implementation of Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011. Fourth is to study the impact of Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011 on public service delivery system. And fifth is to study to explore the role of technology and digital platform in facilitating the implementation of Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011. And sixth is to examine the impact of Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam on general public. This is the hypothesis of my study. Null hypothesis: the implementation of Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011 has not improved the efficiency and timeliness in delivery of public service. First. Second is Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011 has not enhanced transparency and accountability in the government department. Third hypothesis is the implementation of Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011 has improved the quality of public service delivery. And fourth hypothesis is Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adniyam 2011 positively impacted citizen empowerment and satisfaction. This is the research methodology basically. Sample design: the population population covered the Gazipur district of Uttar Pradesh, and basically I selected Gazipur district because of two or three reasons. In district good governance, in district good governance index, Gazipur is ranked in red below. First. Second is the reason is that Gazipur is one of the top top 5 district in delivering the public service. And third is that basically Gazipur is backward in socio-economic parameter. Sample unit is the beneficiary, and sample formula basically used in the study is: for size of the beneficiary, BDMG Cochrane formula is used, and sample size is calculated 384, and for the sample size of the officials, basically Shrubin formula is used. Then sample collection. There are the four tehsil which is selected for the study, and this is basically I have selected. This is the tehsil, Saifpur tehsil, and another is the Gazipur tehsil, and this is Jamania and Jakhnia. There are the four Jakhnia. There are the four tehsil which is selected for the study purpose. From each tehsil, 6 gram panchayat is selected: 2 small, 2 medium, and 2 large. Then beneficiary total population is proposed 384, but I collected complete data of 360. Okay. Then method of sampling: selection of the tehsil, stratified random sampling, gram panchayat, perquisitive sampling, and the beneficiary simple random sampling. Method of data collection is primary and secondary. Primary data is collected with the help of scheduled structured interview, and secondary data is collected from the government data and government record. The tool and technique for data collection is structured interview, observation technique, and data analysis and interpretation, frequency, chi-square, and factor analysis, and reliability test. This is the objective, and this is the tool employed for the data collection and technique for the data analysis. To study and analyze the legislative measure and policy, descriptive study, secondary source and government record is used, and content analysis is used for the data analysis. Then for objective number 2, to study the departmental setup and effective public service delivery system in Uttar Pradesh, descriptive analysis and content analysis. Okay. For objective 3 and objective 4, basically schedule structure interview is used. For objective 5, descriptive study, and for objective 6, structured schedule interview. This is the chapter number 2. Basically deal with the theoretical framework and literature review. Literature review is basically systematic literature review. Just I go with the systematic literature review, and literature review is divided into the 4 parts.
literature review is divided into 4 parts. Part 1 deal with the citizen charter, and part 2 deal with the public service reform, and part 3 deal with the right to public service act, and part 4 deal with the basically common service center. And see, this is basically I use the systematic literature review, and in systematic literature review I use the basically Prisma framework. And there are two sources for the main database. Just I use the two database, Web of Science and then Scopus. And this is the stage of systematic literature with identification, screening, eligibility, and inclusion. There are the 4 stages. In identification stage, basically search result is 5018, and then Web of Science इतना था और Scopus से basically इतने डाटा थे. फिर article skin and title, basically what I did, my search study is that just I search the keywords like common service center, public service reform, and citizen charter in the title, abstract, and keyword. So I found 105 articles. Then after in English 102 article and article and conference paper 90, and remove the duplicate 87, and total basically total article analyzed for the eligibility is basically 87, and that is basically for common service center over. This This is the theoretical framework. Just I use some public administration theories like bureaucratic theory, Max Weber and Peter Brown, and developmental bureaucracy. And then न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट था, यूज ऑफ पीपीपी मॉडल, कॉमन सर्विस सेंटर, 3 E's मतलब कस्टमर फेस, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, सिटीजन फर्स्ट एंड सिटीजन चार्टर, एंड देन न्यू पब्लिक गवर्नेंस में बेसिकली न्यू पब्लिक सर्विस एंड न्यू पब्लिक गवर्नेंस बेसिकली होल गवर्नमेंट अप्रोच या सिंगल विंडो सिस्टम. होल गवर्नमेंट अप्रोच इज लाइक दैट common service center is providing all the services in the one place, that is the centralized system. Then governance and accountability is theory, structure and process, and there are some component of good governance like timeliness, accountability, transparency. Transparency is ensured with the issue of acknowledgement slip. जैसे आप सर अप्लाई करोगे सर्विस के लिए तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देना चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा. उस स्लिप पे ये लिखा रहेगा कि आपको इतने दिन के अंदर ये सर्विस मिलनी चाहिए. ठीक है, कि आपको मतलब आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सपोज अप्लाई किया है तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट 15 दिन के अंदर मिलेगा और इतने पैसे आपको पे करना. बट मोस्ट ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर ये रिसिप्ट नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि वो कस्टमर से 100 से 200 रुपए चार्ज करेंगे, क्योंकि उसमें 15 रुपए लिखा हुआ है. यू विल नॉट पे 15 रुपीज फॉर इट, अदरवाइज आपको वो दे देंगे. ई गवर्नेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस थ्योरी, डिजिटल एरा गवर्नेंस, e-district platform, use of information technology in service delivery, and data driven decision making. And then theoretical development of quality management, scientific management, and then control charts involved का, और फिर total quality management and quality assessment, data formula, key performance indicator. Basically यूपी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डेवलप किया, जो कि 5 इंडिकेटर है. ऑन दिस बेसिस दे आर बेसिकली measuring the quality of the public service. This is the chapter number 3, Uttar Pradesh Janhiत Garanti Adhiniam 2011. This is the basically legal provisions. Section 1 deal with the title and entitlement and enforcement of public service delivery. Then section 2 deal with the definitions like what is designated officer, what is the public service, and who is eligible for the service. This service 3 deal with section 3 deal with the service notification. मतलब state government will notify public service from time to time. Then right to obtain service, section 4, every citizen is entitled to obtain public service within a stipulated time. Section 4 deal with that. Stipulated time framework for section 5. Stipulated time framework means that every citizen is eligible to get the public service within a stipulated time or defined timeline. Then section 6 deal with the appellate structure. Section 7 deal with the penalty. Suppose government official is failed to provide the public service within a stipulated time, then citizen is entitled to make a complaint, and if complaint में जैसे क्या होता है penalty impose की जाती है 500 to 5000. This is the amount of the penalty. Then decision in good faith and rule making, and then remove difficulties. This is the section. This is the legal provision. Then government of Uttar Pradesh has enacted उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी रूल 2011. अब इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट,
ठीक है, इसमें प्रोविजन है कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रोवाइड की जाएगी। देन प्रोविजन है कि हर कॉमन सर्विस सेंटर या तहसील के सामने एक नोटिस बोर्ड रहेगा जिस पे लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, these are the services, these are the cost and these are the time stipulated timeline for service delivery. इसमें public holiday, suppose 20 days is given for the issue of caste certificate. In this provision, in 20 days, only working days is count. No public holiday will be counted in this provision. And till now, government of Uttar Pradesh has notified 382 services in 45 departments. This is the analysis of the directorate. Basically, जो एक्ट आया था उसका एनालिसिस करने पे there are some problems. Basically, ये एक्ट 20 स्टेट में अलग-अलग स्टेट में है. जब वहाँ पे कंपैरिजन किया गया तो there are some legal problems, even there are some legal issues in the government of Uttar Pradesh Act. Suppose there are some common provision. 2010 में एमपी ने पास किया, उसके बाद 5-6 स्टेटों ने 2011 तक पास कर दिया. सेम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी दिया कि कुछ प्रोविजन जो है वो कॉमन है. Lack of awareness generation. There is no any provision for the awareness generation in state of Assam. There is a provision for the awareness generation, and separate budget is allocated for the awareness generation in the state of Assam. But there is no provision for awareness generation, and there is no provision for public service commission. Even Uttarakhand, Punjab, and Haryana, there is a provision for separate public service commission for the enforcement and monitoring of the act. And then external monitoring, there is no any provision for the external monitoring in this act. Even when we see the model of the Karnataka government, there is a provision for the external monitoring. मतलब प्राइवेट सेक्टर या थर्ड सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस अलग से मॉनिटर की जाती है. बट ऐसा प्रोविजन यूपी में नहीं है. ठीक. एंड देयर इज नो एनी प्रोविजन फॉर तत्काल सर्विस. जैसे कि आपको तुरंत सर्विस, वहाँ पे क्या है कि आपने अप्लाई किया, जब आपका सीरियल नंबर आएगा तभी आपको सर्विस मिलेगी. अगर आपको तत्काल सर्विस की जरूरत है तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है. हाँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि ऑफिशियल वहाँ ऊपर रिक्वेस्ट है कि मे भी पॉसिबल है कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर दे. बट इन द स्टेट ऑफ बिहार देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द तत्काल सर्विस. इट मीन्स कि अगर आपको सर्विस तुरंत चाहिए तो थोड़ा सा आपको एडिशनल कास्ट पे करना पड़ेगा फॉर दैट. ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म अंडर उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी नियम 2011 देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द ग्रीवेंस रिडक्शन. मतलब ये है कि यहाँ पे 2 अपील स्ट्रक्चर बनाया गया है लाइक आरटीआई के तरह. वैसे इसमें क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी को आप कंप्लेन करोगे. अगर वहां से नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो सेकंड अपील अथॉरिटी. फिर लास्ट पॉइंट इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द अदर स्टेट. यहाँ पे क्या है चैप्टर, इस चैप्टर में हरियाणा, बिहार, हरियाणा, यूके और हिमाचल प्रदेश के एक्ट का कंपेयर किया गया और जो पैरामीटर है उसमें कब इनेक्टमेंट हुआ, पेनल्टी प्रोविजन क्या है, टाइमलाइन ऑफ सर्विस डिलीवरी, नंबर ऑफ सर्विस इंप्लीमेंटेड. This chapter deals with the public service modernization and international practices of public service delivery. 4 stages of service modernization. There are the 4 stages for the public service modernization. First is the rationalization, second is the re-engineering, and third stage is the digitalization, and fourth is the delivery of public service. There are the 4 stages for the service modernization. This is the digitalization of the public service during the COVID-19. कोविड-19 में वर्ल्ड लेवल पे सर्विस का डिजिटलाइजेशन जो किया गया वो चीज़ें. जैसे कि आपने कनाडा में गवर्नमेंट ने $5,000 मिलियन एलोकेट किया फॉर सर्विस मॉडर्नाइजेशन. यूनाइटेड किंगडम में भी सेम, यूएस में भी, साउथ कोरिया में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर स्टेट में हर जगह इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है. दिस इज द इनोवेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी. इनोवेटिव मॉडल में कुछ मॉडल जो है वो इंडिया के हैं. जैसे डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस इन दिल्ली में क्या होता है कि आप सर्विस के लिए अप्लाई करें, रिक्वेस्ट करें, वो आपके घर आएगा, आपसे मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कराएंगे और आपको सर्विस डिलीवर करेंगे. फिर सेवा सिंधु मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन कर्नाटका. दिस इज द बेस्ट मॉडल एंड अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And then improving public service delivery in अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑल टाइम डॉक्यूमेंट मशीन. यहाँ पे क्या होता है कि आप सर्विस को अप्लाई कर दिए तो आप वहाँ पे ATM टाइप मशीन होगा, आप वहाँ पे जाके अपना इंटर करिए और आप वहाँ से प्रिंट कर लीजिए डॉक्यूमेंट.
फिर स्वागत सिस्टम फॉर ग्रीवेंस रेडरेसल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। जो स्वागत सिस्टम ये है कि यहाँ पे जो भी ग्रीवेंसेज है पब्लिक ऑफिशियल एक दिन आएंगे और उस ग्रीवेंसेज को सेम कंसर्न ऑफिसर को असाइन किया जाएगा और विद इन टाइम उसको बेसिकली रिजॉल्व किया जाएगा। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिंगापुर का मॉडल है, जिसमें कि क्या है कि सिंगापुर का पब्लिक सर्विस डिवीजन है, सेपरेट है, जो कि डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में काम करता है। और यहाँ पे क्या है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ऑन द नीड एंड लाइफ साइकिल बेसिस पे। मतलब जैसे कि बच्चा होता है कि चाइल्ड का बर्थ हुआ तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आफ्टर द बर्थ सर्टिफिकेट जिन जिन सर्विसों के लिए वो एलिजिबल होगा गवर्नमेंट उसको तुरंत नोटिफिकेशन देगी कि आप इस सर्विस के लिए एलिजिबल है एंड यू विल क्लेम फॉर दिस सर्विस। देन मॉडल ऑफ कोरिया एंड देन मॉडल ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान में बेसिकली क्या है कि आसियान, दिस इज बेसिकली दिस मॉडल में क्या है यहाँ पे आसियान एक सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन है जो कि डायरेक्ट वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान के अंदर में काम कर रहा है। फिर केन्या पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड प्रिंसिपल एक्ट 2015 में आया एंड हुदुमा सेंटर। हुदुमा सेंटर में क्या है कि जैसे अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम आने की वजह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम पोस्ट का बहुत कम यूज कर रहे हैं एंड इवन टेलीग्राफ का भी बहुत कम यूज कर रहे हैं, टेलीफोन का भी कम यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये सेंटर खाली पड़े हुए थे, जो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन ही बना दिया। ठीक है, उन्होंने उस बिल्डिंग जो यूज नहीं हो रही थी उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसमें। फिर नॉर्मल में इथिकल गाइडलाइंस फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यूके में सिटीजन चार्टर, नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट 1998 में, पब्लिक सर्विस एग्रीमेंट 1998 में ही है, बिजनेस प्लान 2010 एंड सिंगल डिपार्टमेंट प्लान 2015। जैसे हमारे यहाँ की कॉमन सर्विस सेंटर होता है, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर बेसिकली आसियान सर्विस सेंटर है जो कि अजरबैजान का है। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड की जा रहा है। ठीक है, और वहाँ पे मोबाइल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। मोबाइल सर्विस में क्या होती है कि बस जाएगा रिमोट लोकेशन पे या ट्रेन जाएगी और उन पे वहाँ पे जिसको भी सर्विस चाहिए वो वहाँ पे जाके सर्विस ले सकता है, पब्लिक सर्विस। दिस इज द हुदमा सेंटर फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब ये जो बिल्डिंग जो खाली पड़ी हुई थी, इवन टेलीफोन और ये चीज़ें मतलब वो यूज कम होने की वजह से, इवन पोस्ट ऑफिस का भी कम यूज होने की वजह से इसको इन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया। Data analysis and interpretation, basically, see, these are the parameter of my questionnaire. ठीक है, awareness among the beneficiary, Likert scale data is used. Then assessment of time bound service delivery. यहाँ पे nominal data basically yes, no and cannot say used. Assessment of accessibility of public service, फिर quality in public service delivery, assessment of citizen centricity, assessment of citizen satisfaction and assessment of constraint faced by the beneficiary and assessment of reason for delay in service delivery and status of government mechanism. Source is primary source used for awareness generation and time bound service के लिए primary and secondary both the source use, accessibility के लिए primary and secondary both the use and then quality के लिए भी, citizen centricity के लिए and then nature of the qualitative and quantitative both the data. स्टैटिकल टेस्ट कौन कौन सी यूज किए गए बेसिकली, एनोवा टेस्ट इज यूज्ड एंड देन काई स्क्वायर टेस्ट एंड मीन एंड टाइम एवरेज, काई स्क्वायर, एनोवा, मैन एंड विटले यू टेस्ट एंड क्रिस्टल वैलिस टेस्ट, काई स्क्वायर एंड ट्री मैप यूज फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड द काई स्क्वायर टेस्ट यूज फॉर द ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म। See, this is the statistical tool for hypothesis testing. This is the hypothesis, this is a dependent variable, independent variable, and parametric test and non-parametric test. Basically, see these are the hypotheses. These are the hypotheses, and this is the dependent, independent variable, and parametric test. Assumptions check for check of the internal consistency, reliability test is used and ground back alpha value is used and ground back alpha value is more than 106 is considered good for study and then item validity, explanatory factor analysis is used and for data normality test, Cipro and Milk test used and data homogeneity के लिए test use किया गया and sample adequacy test, PMO and Watley test of specificity is used. हाइपोथेसिस वाले पे जाइए। हाँ सर, से पिछली स्लाइड हाइपोथेसिस डबल हाइपोथेसिस पे जाइए। ये सब
सभी अलग अलग हाइपोथेसिस है। यस सर, तो इसमें H0 H1 क्यों दिया? मतलब ऐसी S0 मतलब वो Hypothesis। और H1 मतलब सर अल्टरनेट। alternative। तो उसको कर दीजिए H1 H2 H3 ये कर देना। हाँ। इस तरह कर दिया। ठीक hypothesis ये बना आपके के 1 2 3 4 हाँ, 5 इस तरह से रहेगा। इस तरह से। हर एक सर। हाइपोथेसिस में एक नल और एक अल्टरनेट बनेगा। हाँ जी सर, वो H0 और H1 हर एक रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वो अल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, तो वो नंबरिंग कर लेंगे ना। हाँ, H1 H2 H3 H4 ऐसे कर लीजिए। ठीक सर। चलिए कंक्लूजन पे आओ। डेटा वाला तो सर तो ये मेन डेटा वाले को बताइए, हम कुछ सीख जाए। ठीक है, डेटा वाला डेटा वाला और और इसके बाद 26 25 के बाद C. Level of awareness among officials and beneficiary. C. Awareness about the main provision. Officials में main provision का जो awareness है वो act का वो ज़्यादा है, beneficiary में कम है, ठीक है। और जो इसमें है basically ऑफिशियल में ज़्यादा है awareness level, beneficiary में awareness level कम है, ठीक है। दिस बेसिकली ये अलग अलग डायमेंशन पे अवेयरनेस जनरेशन के क्वेश्चंस हैं। कंपेरिजन ऑफ अवेयरनेस अमंग द तहसील लेवल में देखा जाए तो अवेयरनेस गाजीपुर सदर तहसील में ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द रीजन देयर आर सम रीजंस, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के पास है, अर्बनाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा है, लेवल ऑफ लिटरेसी ज़्यादा है, इसलिए गाजीपुर सदर तहसील के क्राउड में अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है। अपेंडिक्स में There is no significant differences in level of awareness about Uttar Pradesh among the four तहसील। फोर तहसील में अवेयरनेस का लेवल में कोई significant difference नहीं है, बट जब इसको नवा टेस्ट लगा के चेक किया गया तो रिजल्ट ये रहा। आपने क्वेश्चन वगैरह दिया था, हाँ सर, उसका डेटा नहीं दिया इसमें? वही है सर, नहीं मतलब कितना रिसीव हुआ, क्या हुआ? उसमें स्टार्टिंग में सर मैंने दिया था, मेथोडोलॉजी में हाँ सर, मतलब सर मैंने जेंडर 384 वगैरह आपने टारगेट नहीं किया था, क्या सर? डेमोग्राफिक है इंफॉर्मेशन सर, सब है उसमें ही दिखा दिया था। सर, मतलब सब स्टार्टिंग में ही मैंने वो कर दिया था। डेमोग्राफिक में सर नहीं, डेटा वाले पे जब डेटा पे जब बातें करें तो शुरू से डेटा पे स्टार्टिंग नहीं डेटा आप जब दिखा रहे हैं जी सर, तो डेटा पढ़ने वाले को तो बताना पड़ेगा ना, डेटा क्या है, फिर से डिस्कस करना अंदर क्या है मटेरियल। हाँ शुरुआत कैसे हो रही है? जैसे अच्छा। आपने टेस्ट के बारे में बताया कि ये इस नॉमिनल डेटा और लिमिटेड स्केल पे लिया गया, तो उसके बाद मतलब ये कितने आपने भेजा, कितने लोगों ने रिसीव नहीं किया? आपने ये जो डेटा दिखा रहे हैं, अच्छा सीधा आपने ऑब्जेक्टिव्स पे आ गया। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव पे आ गया है। वो Data डेटा एनालिसिस में सर मेरे पास है सी, मैं सर अभी बताता हूँ, डेमोग्राफिक सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द बेनिफिशियरी है सर, ठीक है। ये उसमें पॉइंट कहाँ पे है? सर नहीं इसमें ये लैपटॉप में सेव कर दिया ना आपने? हाँ सर, स्किप किया सर। ओके ओके, सर उसमें चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में होगा सर। ठीक ठीक ठीक। तो से हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। दिया जब इनोवा टेस्ट एनालिसिस में यूज किया गया, देन इट इज फाइंड दैट की रिजल्ट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट उत्तर प्रदेश जनरल गारंटी अमंग द 4 तहसील इन द गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। इवन अगर हम इसको अगर चेक करना है तो पीछे से भी यहाँ से परसेंटेज वाइज भी चेक कर सकते हैं, इवन सेम टाइम इनोवा टेस्ट लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। This is the first hypothesis. Second is the mode of obtaining service. ऑनलाइन सर्विसेज जो आप लेते हैं 52% अराउंड 53% है, फिजिकल विजिट के थ्रू 27% है, एंड देन एजेंट के थ्रू 17-18% के अराउंड है, एंड देन अदर्स 2.5। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग पब्लिक सर्विस तहसील वाइज देखिए तो गाजीपुर सदर में ऑनलाइन सर्विसेज सबसे ज़्यादा यूज एसएस की गई है, एंड देन जखनिया में थोड़ा सा कम, एंड देन सेकंड हाईएस्ट यूज हुआ जो ऑनलाइन सर्विस वो जमनिया में है, एंड देन सैदपुर में थर्ड हाईएस्ट जो कि ऑनलाइन सर्विस यूज की गई है। डिस्टेंस टू द नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके पास में कॉमन सर्विस सेंटर कितने दूरी पे है, तो अराउंड 2 to 4 किलोमीटर के बीच में जो आंसर आया वो 45% लोगों ने बोला कि 2 से 4 किलोमीटर के बीच में ही हमें कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब इट इंश्योर दैट एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस हैज इंक्रीज्ड। सेम टाइम अगर हम देखते हैं कि 5 to 7 किलोमीटर पे 27% है, एंड लेस देन 2 किलोमीटर पे 27.5 किलोमीटर है। पेमेंट ऑफ यूजर चार्जेस फॉर पब्लिक सर्विस, अगर देखा जाए पब्लिक सर्विस के लिए जो मैंने 5 सर्विसेज सेलेक्ट की थी, इनकम कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड इंसॉल्वेंसी एंड म्यूटेशन ऑफ लैंड सर्टिफिकेट,
उसके लिए 15 रुपए, अगर आप डायरेक्ट सर्विस एक्सेस करते हो तो आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा सर्विस चार्ज, और अगर आप CSC के थ्रू, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू करते हो तो आपको 30 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो डेटा आया उसमें लेस देन 50 रुपीज वाले में अराउंड 12.5% ही है। इट मीन्स दैट कि CSC is charging more, user charges for the service delivery. Even 51 to 100 रुपीज अराउंड, अभी तो 60 से 70 रुपए में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से अगर जाया जाए तो 30 रुपीज में आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपको कास्ट सर्टिफिकेट 30 रुपीज में ही CSC के थ्रू जा रहे हो। अगर आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं सर्टिफिकेट सेम रेट पे मिलता है? हाँ सर, हर का सेम है, मतलब इंसॉल्वेंसी का सर अलग है 100%। तो वो डिफरेंस दिखा देंगे ना? हाँ सर, जैसे आपने लिखा भी है ना इसमें। हाँ हाँ सर, 30 रुपीज गवर्नमेंट का रेट है, हाँ, government 20 का- रुपीज ऑन सॉल्वेंसी का रेट है। हाँ सर, तो आपके हिसाब से इतना पैसा लग रहा है, हाँ, आप इतना एक है। एवरेज दिखा दीजिए कि इतना एक्स्ट्रा पे कर रहा है, अच्छा ठीक है सर, वो एक फाइंडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है। कि ऑन एवरेज इतना पे कर रहे हैं। मोर देन गवर्नमेंट चार्जेस। अच्छा हाँ, इसमें शो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक सर, ये सर नोट करते जा रहे हैं और सर से मिल हाँ हाँ लेंगे सर। उसके बाद। चलिए आप नोट करिए। सर आपके उसमें भी नोट कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूनियन गारंटी हैड नॉट फैसिलिटेटेड इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है, देन ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रॉस टेबुलेशन किया, देन परसेंटेज वाइज ये मिला कि 75% लोगों ने बोला कि एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश यूनियन गारंटी अधिनियम। देन सी द chi स्क्वायर वैल्यू देखा गया, chi स्क्वायर टेस्ट के बाद ये भी पाया गया कि फ्रॉम द टेबल इट कैन बी कंक्लूड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश यूनियन गारंटी इन 2011 हैज इंक्रीज्ड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस। Now next, common reason for the rejection of the application form. अगर application form applicant देता है तो क्यों रिजेक्ट किया जाता है, ये basically data is collected from the officials and as well as from the beneficiary। तो इसमें ये फाइंड आउट किया गया कि अराउंड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से अराउंड 32% लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, देन नॉन क्लियरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट से 13%, देन मिसमैच ऑफ थंब इंप्रेशन 27.4। अब क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अभी एक 6 महीने अराउंड पहले, साल वाले अराउंड, उन्होंने नोटिफाई किया कि आपको अब सर्विस चाहिए तो आपके पास आधार होना चाहिए, या आधार नहीं है तो आप अप्लाई करिए, आधार का एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले आइए, उसके बाद आपको पब्लिक सर्विस डिलीवर कीजिए। तो देयर इज द इशू ऑफ द मिसमैच ऑफ थंब इंप्रेशन, देन द फॉल्स इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, एंड सम टाइम लेट रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे क्या होता है, CSC वाला एप्लीकेशन सर्विस के लिए वो कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि उसको जब ले आकर डॉक्यूमेंट जमा करना होता है तो टाइम से नहीं आता, वो अपने पास होल्ड कर लेता है। देन मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, फॉल्स इंफॉर्मेशन, अनएबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स। कई बार क्या होता है कि किसी क्लेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर्स या लोग ऑफिसर सोचते हैं कि हम सिटीजन के साथ इंटरेक्ट हों, तो सिटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि कॉमन सर्विस सेंटर वाला जब सर्विस के लिए अप्लाई करता है तो अपना नंबर डाल देता है, ठीक है, मोबाइल नंबर। वो क्या करेगा, अपना मोबाइल नंबर डाल देगा, तो यूजली CSC वाले के ही ऑफिशियल CSC वाले को ही कांटेक्ट कर पाता है, जो ऑफिसर उसको, ये मतलब ये एक तहसीलदार था जो बेसिकली जमनिया डिस्ट्रिक्ट, जमनिया तहसील में, तो उन्होंने बोला ये रीजन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कई बार क्या होता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो सैलरी वाला है वो सैलरी स्लिप ही नहीं देता, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में तब भी दिक्कत आती है, देता है तो कई बार क्या होता है कि वो हाइड कर देता है इनका। तो आपने इसकी रिकमेंडेशंस में मेंशन किया है क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ सर, लास्ट लाइन में ऐसे होगा। ठीक है। तो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द टाइमलाइन फॉर सर्विस डिलीवरी आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट। मतलब ये है कि इस टाइम के अंदर सर्विस डिलीवरी करने के लिए क्या है, मतलब टाइम के अंदर मिला है, मतलब जब एक्ट आया मैंने नल हाइपोथेसिस ये बनाया कि देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट इन द टाइम फॉर सर्विस डिलीवरी आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश यूनियन गारंटी अधिनियम 2011। मतलब ये है कि जब एक्ट आया उसमें आने के बाद से टाइम के अंदर सर्विस मिलने में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, मतलब कि हुआ, तो जब मैं क्रॉस टेबुलेशन किया डेटा का सर्विस के बेस पे, देन इट इज फाउंड दैट कि 89.72% लोगों ने बोला कि वैसे तो सर 20 and 15 डेज टाइम लाइन है सर्विस डिलीवरी की, बट लोगों को सर्विस अराउंड 7 to 8 डे में मैक्सिमम लोग गेट द सर्विस। तो दिस इज द, एंड देन फिर मैंने इसको टेस्ट किया एंड देन रिजल्ट देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन द टाइमलाइन फॉर द सर्विस डिलीवरी आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट। एवरेज एंड मीडियम टाइम, ये गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा है कि एवरेज एंड मिनिमम टाइम कितना लिया जाता है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक बार मुझे बताइए, ये जो आपका हाइपोथेसिस है ना, पीछे जाइए जी सर, ये हाइपोथेसिस टेस्ट हो रहा है क्या, जो आप इसमें कहना चाह रहे हैं? सर टेबल में जाइए, क्रॉस टैब में।
यस सर। यहाँ पर आप क्या प्लॉट कर रहे हैं कि वेदर यू रिसीव ऑन टाइम और हाँ। नॉट, यस नो। हाँ, डू यू रिसीव द पब्लिक सर्विस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम? और दूसरी तरफ आप डिफरेंट सर्विसेज को ले रहे हैं, हाँ सर। है ना। हाँ तो ये जो आप इससे यही प्रूफ हो सकता है कि डिफरेंट सर्विसेज में और जो टाइमली सर्विस रिसीव करने का जो परसेप्शन है जो लोगों का, यही तो है, उसमें डिफरेंस है कि नहीं, हाँ वो डिफरेंस है कि नहीं है। हाँ। ये नहीं प्रूफ हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया। सर बेसिकली क्या है, जो टाइम लाइन दिया गया है, मतलब मैंने कुछ टाइम से मतलब जब मैंने दिया था तो टाइम लाइन पर भी मैंने एक क्वेश्चन किया है सर। आगे जाएंगे तो उसमें मिलेगा कि टाइम दिया है विद इन 7 days, 8 to 15 days ऐसे टाइम लाइन पर भी दिया गया है। मेरा एक आप ये कागज पे तो यही लिख रहे हैं ना, आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि देयर हैज बीन नो इंप्रूवमेंट इन द टाइमलीनेस ऑफ सर्विस डिलीवरी आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ, तो प्री का डेटा तो आपने कलेक्ट नहीं किया, प्री का कलेक्ट नहीं किया, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि आफ्टरवर्ड इंप्रूव हुआ है। ठीक, इस टेबल से आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते विद इन हैं टाइम सर्विस मिली है। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जो टाइमली सर्विस रिसीव होती है अमंग द सर्विसेज, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनमें वेरिएशन है कि नहीं, अच्छा। टाइमली सर्विस का, यस नो का। हाँ हाँ। यही बात इस टेबल से आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि आफ्टर इनैक्टमेंट इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए आपको प्री का डेटा चाहिए था, या क्वेश्चन में आपको ये पूछना चाहिए था कि पहले क्या नहीं होता था और क्या एक्ट आने के बाद होने लगा, तो ये तो आपने पूछा नहीं था। सर मैंने ये इसलिए पूछा था कि आपको टाइम के अंदर सर्विस मिल रही है। हाँ, वही चीज आप प्रूव कर सकते हैं। हाँ सर, तो विद इन टाइम सर्विस मिल रही है सर। विद इन टाइम मतलब सर्विस मिल रही है जो स्टिपुलेटेड टाइम है एक्ट में, उसके अंदर में सर्विस मिल रही उसके है। अंदर नहीं, लेकिन कुछ लोग नो भी कह रहे हैं ना, हाँ नहीं, तो वैसे ये डिफरेंस यस नो का सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अच्छा। यही आप टेस्ट कर सकते हैं। हाँ सर। बस, हाँ और कुछ नहीं टेस्ट कर सकते। और कुछ हिपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं पॉसिबल। हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है जी वो सर। हाइपोथेसिस इस टेबल से नहीं प्रूव हो सकता। अच्छा। ये टेबल कुछ और कह रही है, हाइपोथेसिस आप कुछ और कर रहे हैं, हाँ, ये मेरा कहना है। तो सर इसको हाइपोथेसिस को थोड़ा सा चेंज करके किया जा सकता है। हाइपोथेसिस Time चेंज जो- कर दीजिए, हाँ। हाइपोथेसिस ये कर दीजिए कि देयर इज नो डिफरेंस या सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी टाइम अबाउट रिसीव टाइम टू रिसीव दी पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, अमंग द सर्विसेज, जैसे कास्ट सर्विसेज। हाँ, तो ये सर इनोवा टेस्ट फिर यहाँ पे लगाना पड़ सकता है ना सर? नहीं, काई स्क्वायर में हो जाएगा, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। Differences- यस नो ही तो पूछ रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि हो सर जाएगा। स्केल डेटा है तो कई स्क्वायर पे भी चल सकता है ना। हाँ, का स्क्वायर से प्रूफ हो जाएगा, फिर आप ये प्रूफ कर देंगे कि अमंग द सर्विसेज जो टाइमलीनेस है वो डिफर कर रही है, डिफर कर लिया। कर रही है, क्योंकि आपका हाइपोथेसिस नल रिजेक्ट हो रहा है, हाँ, यस सर। तो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है। इसका मतलब कुछ सर्विस जल्दी मिलती है, कुछ लेट और कुछ लेट। यस सर। ये प्रूफ कर पाएंगे। ठीक सर। ये सर मीन एंड एवरेज एंड मीन टाइम है, बेसिकली गवर्नमेंट डेटा का यूज किया गया है उनकी वेबसाइट से कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए 15 डेज अलॉट हुआ है, और जिसमें कि मीन एवरेज टाइम 9.58 डेज लगा है, और बेसिकली मीन टाइम जो लगा है सर, मीडियम टाइम वो 7.83। सेम टाइम फिर आप देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी ऐसा ही, डोमिसाइल के लिए और इनकम के लिए। इनकम में 2 टाइम है, अगर एजुकेशन पर्पज के लिए चाहिए तो 7 डेज है, और अगर अदर पर्पज के लिए चाहिए इनकम सर्टिफिकेट तो 20 डेज टाइम, 15 डेज टाइम है। कॉमन रीजन फॉर डिले इन सर्विस पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो फिर मैंने चेक किया तो कुछ अदर्स में आके रिस्पांस, और मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें ये है। देन आउटकम, अच्छा ये बेसिकली इसका सही टेबल मिसिंग है, बेसिकली यहाँ पे बस रिजल्ट ही है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पर्सनल। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल में देर आर around 6 पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन तो इसमें बेसिकली सर प्रेजेंस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 80% लोगों ने बोला यस देयर इज ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सीएससी के थ्रू भी मिल जाता है सर्विस, और तहसील भी है, तहसील भी डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इवन अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इवन अब वालों को लैपटॉप दिया गया और मोबाइल फ़ोन दिया गया है, बट और उनको इंटरनेट के लिए 249 रुपीज़ पर मंथ पे किया जाता है कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें, बट देयर इज सम प्रॉब्लम्स कि वो है कि बेसिकली उनका लैपटॉप फंक्शनिंग नहीं है। गैलेक्सी का मोबाइल दिया है जो कि उन्होंने बताया कि प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता, मतलब काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता,
So there is a technology, but there are some grievances from the officials. And then availability of the educated staff में लगभग में 69% लोगों ने बोला कि हाँ स्टाफ है, बट जो कुछ सम तहसील में जितना सेंक्शन पोस्ट है उससे कंपेयर करते हैं फील्ड वैकेंसी की, तो देयर आर सम वैकेंसी इन द बेसिकली. एंड देन अवेलेबिलिटी मेजर फॉर एलोकेशन ऑफ द मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा. Everyone is agreed, yes, personal data is protected over there. Then financial allocation में भी agree है, and training program. Budget allocation for youth service delivery in Uttar Pradesh. Basically, this is the government data. पहले 17-18 में 2017-18 में बजट का allocation हुआ 42.5 लाख करोड़, फिर उसके बाद 33 लाख करोड़, and then निफ्टी भी लेते हैं ये by time मतलब रिड्यूस हुआ है. एंड रीजन इज दैट कि पहली बार यहाँ पे सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया, तो देयर आर द नीड ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट फॉर सर्विस डिलीवरी. तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा पैसा एलोकेट किया था. फिर मेंटेनेंस पे आया, एंड फिर 2017-18 में थोड़ा सा बजट बढ़ा गया. बेसिकली रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज इंट्रोड्यूस कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम टू 3.0. Assessment of reliability of public service delivery. Delivery of public service by the service provider. The promise, yes, 77% says yes, and then receiving the service as per the need and expectations, 64% yes, and recommendation for other to avail the service under the act, 91% says yes, and recommending the inclusion of more public service under the act, 87% says yes, the more public service should be included in the act, and then continuation of the act. तो अराउंड 80 लोगों बोला कि इस एक्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए. एंड दिस इज द इंक्लूजन ऑफ पब्लिक सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. जब गवर्नमेंट ने एक्ट इम्प्लीमेंट किया तब 13 सर्विस थी, फिर बाद में उन्होंने 17 सर्विस इंक्लूड की 2013 में, फिर 8 सर्विस, 3 सर्विस 2015 में, देन 94 सर्विसेज 2026, एंड 19 में 3 सर्विसेज, देन 92 सर्विसेज इंक्लूडेड इन 2020, एंड देन 21 में 35 एंड 38. There is a significant difference in the availability, and this is the question. Basically, this is the hypothesis. There are the significant differences in the availability of infrastructure for the delivery of public service across different area in the Gazipur district. तो इस पे क्या गया कि our test is used rural, urban and semi-urban के लिए, and then is found that कि since the p value is less than 0.5, तो alternate hypothesis hypothesis is accepted. Hence, there is no significant difference in the availability of the infrastructure for the different region of the Gazipur district. तहसील वाइज क्यों नहीं किया इसको? क्या सर? ये हाइपोथेसिस तहसील वाइज क्यों नहीं किया? तहसील वाइज सर मतलब रीजन वाइज मैंने कर लिया था कि अर्बन रूरल में क्या डिफरेंस है कुछ, या फिर सेमी अर्बन में कुछ डिफरेंस है. ये आपने कैसे डिफाइन किया अर्बन को? अर्बन को सर बेसिकली वहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आया, नॉमिनल क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने उनको अर्बन एरिया का कुछ क्वेश्चन था, तो अर्बन एरिया को मैंने मतलब लाइक कि नहीं अर्बन और रूरल कैसे अरे सेंसस से है, जो बेसिकली जो सेंसस था सर 2011 सेंसस में उससे डेटा यूज किया गया. लिखा है इसमें सर अभी इसमें शायद होगा तो मे बी इसको ऐड कर दीजिएगा. ठीक सर. There is no significant difference in the reliability of public service across service delivery institutions. Basically, there are the 3 institutions that is basically delivering the public service. उसको मैंने देखा, तो this is the main value, and it shows that there is a significant difference in the reliability of public service delivery. Basically क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू कॉमन सर्विस सेंटर एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. ये चीज़ एक मुझे बताइए, लास्ट वाले कॉमन सर्विस सेंटर, देन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, देन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, ये क्या है? सर जैसे आपको इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ठीक है, ऊपर लिखना पड़ेगा ना आपको. अच्छा लेवल में लिखा नहीं है. अच्छा उसको थोड़ा सा नहीं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो तहसील से जो सर्विसेज डिलीवर की जा रही है सर, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो ना. ठीक वो चीज़ें उसको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा ना सर. चाहे ब्रैकेटेड डिफाइन ब्रैकेट में ब्रैकेट में डिफाइन कर दो. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है?
कलेक्ट्रेट और हाँ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों How a common person can differentiate between collectorate and administration? रिस्पॉन्सिवनेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है, जैसे इज ऑफ अंडरटेकिंग सर्विस प्रोवाइडर तो अराउंड 27.5 सेटिस्फाई है कि हाँ मतलब रिस्पॉन्सिवनेस है। देन फिर अवेलेबिलिटी एक ऑफ चक्कर में एक सर का क्वेरीज है हाँ। कि रिलायबिलिटी पे आपने क्या क्वेश्चन मतलब रेटिंग कराया है क्या? नहीं सर लिमिटेड स्केल डेटा है सर। तो उसमें अच्छा क्या है? निकट से आपने डेटा कलेक्ट किया यस सर। रिलायबिलिटी सर नहीं नहीं आप बता दीजिए आपको अरे ठीक है हो हो गया कोई दिक्कत नहीं दिखाओ नहीं, सर के साथ बैठ जाना क्वेश्चन तुम। नहीं हाँ। पूछना ही है ना? नहीं बताइए सर के साथ बैठ जाना जरा सा। ठीक है फीडबैक मैकेनिज्म अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्विस ले रहे हैं तो बाद में फीडबैक सबमिट करने के लिए आपको ऑप्शन आता है। इवन आप जब वहाँ पे जाएंगे तो मतलब मैंने देखा तो वहाँ फीडबैक के लिए अवेलेबल है और उन्होंने पूरा एक सेल अलग से बना के रखा हुआ है। एट द प्रेजेंस ऑफ नोटिस बोर्ड इट इज़ फाउंड दैट कि तहसील में तो नोटिस बोर्ड है बट कॉमन सर्विस सेंटर पे नोटिस बोर्ड नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि कॉमन सर्विस सेंटर पे क्या है कि उन्होंने लिखा ये प्रमाण पत्र मिलता है और इन्होंने ये नहीं लिखा कि इतना टाइम में मिलता है इतने पैसे में मिलता है। रीज़न ये है कि वो कस्टमर से जो चाहे वो चार्ज कर सके सिटीजन से। तो तहसील पे तो हर जगह नोटिस बोर्ड अवेलेबल है बट कॉमन सर्विस सेंटर पे मतलब मैं कहीं पे भी नहीं देखा कि ये चीज़ हो। हाँ वहाँ पे लिखा है कि ये सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बैंक की सर्विस दे रही है, ये सर्विस दे रही है, बट देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ एनी सर्विस कि कितना पैसा है कितना कॉस्ट है। There is a significant variation in the perception of the beneficiary on the accountability of public service delivery institution in different तहसील of गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। कि मतलब मैंने एक उनका बेनिफिशियरी का परसेप्शन कि क्या अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पहले से कुछ इम्प्रूव हुआ है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो दिस इज द बेसिकली जब मैंने टेस्ट किया तो ये इट इज फाउंड दैट कि दिस इज अ नॉन पैरामेट्रिक डेटा। तो नॉन पैरामेट्रिक डेटा है तो इन द केस बेसिकली देयर आर द 4 डिस्ट्रिक्ट तहसील्स सो critical values test is applied and it is found that their test revealed that significant difference in the perception of the respondent to the responsibility of public service delivery। तो चूंकि डिफरेंट मतलब ये पाया गया कि डिफरेंस है तो अब ये जानना इंपॉर्टेंट था कि किस में ज़्यादा डिफरेंस है। देन फॉर दैट मैन एंड विटनी टेस्ट यूज्ड। पहले मैंने गाजीपुर को जखनिया से कंपेयर किया, फिर जखनिया गाजीपुर को सैदपुर से, देन जमनिया से। So it is found last year it is found that p value is less than 0.5, hence there were fixed reveal significant differences in the perception of the beneficiary regarding the responsiveness of service delivery in Gazipur Sadar and Jakhniya। Finally it can मतलब फाइनली ये हुआ कि गाजीपुर सदर एंड जखनिया में जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस था जब मैंने इंडिविजुअल कंपेयर किया टू बेसिकली टू तहसील में। फिर एश्योरेंस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी में देखिए तो अवेलेबिलिटी हाँ एश्योरेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी एश्योरेंस के लिए जब देखा गया तो ये फाइंड आउट किया गया कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है 70% लोगों ने बोला कि हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिलती। एक्नॉलेजमेंट स्लिप में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगर जो ऑफलाइन कर रहा है या फिर सीएससी के थ्रू करवा रहा है जाके तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो नहीं मिलती। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में क्या होता है कि आपका नाम क्या है, आपने किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है, कितने दिन में आपको सर्विस मिलेगी, डेट मेंशन होता है क्लियर कट कि इतने डेट तक आपको सर्विस मिल जाएगी और ये कास्ट है, बट वो नहीं पाएगा। फिर ट्रस्ट इन सर्विस प्रोवाइडर अराउंड आपकी 70% अराउंड 69% लोगों ने कहा कि हमें ट्रस्ट है सर्विस प्रोवाइडर में। देन नेक्स्ट इज द सेटिस्फैक्शन विद द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अराउंड 45 मतलब अराउंड मान के चलते हैं कि 70% अराउंड 68% सेटिस्फाइड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। और ब्राइब और एडिशनल फेवर का केस जो था अराउंड 70% सेज वेरी नॉट एट ऑल। Empathy in public service delivery and these are the parameter staff member were courteous being provided for public service delivery, yes 45% said yes agree with that statement and service with the dignity and respect 70% agree and then presence of service culture but it is found that कि सर्विस कल्चर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का जो सर्विस कल्चर होना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में दैट इज नॉट देयर एंड देन स्पेशल प्रियॉरिटी टू वुमेन नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि ओल्ड एज ऑफ वुमेन के लिए हो प्रियॉरिटी। एंड देन रिव्यूज द क्या ये एट टाइम से कुछ प्रॉब्लम आपकी रिव्यूज हुई है तो ये दे सेड यस 78% सेड यस देयर इज ए
बेसिकली ये रिड्यूस हुआ है। ये empathy के लिए ये mean value and standard deviation is given in Curtis. Then it is found that see mean value is near to 5, it means that कि this is good, ठीक है। और फिर अगर हम देखते हैं कि स्पेशल प्रायोरिटी टू वुमेन एंड पर्सन, तो मीन वैल्यू 6.8 है, दैट मीन्स दैट इज नॉट गुड। एंड देन सी द प्रेजेंस ऑफ क्यू सर्विस या तत्काल सर्विस, it is less than 2, that means that is not good। and then lack of service culture, this is also not good because this is the negative questions। There has been improvement in the service since the implementation of the act, that is the hypothesis। so it is found that 85% लोग said yes there is improvement in the service quality since the implementation of the act, and then 12.5% said no, there is no improvement। And this is the chi-square overall, here we conclude that quality of public service has improved since the implementation of the act। The implementation of act has not improved the overall efficiency and accountability of public service delivery। So yes, do you think that Uttar Pradesh has improved the overall efficiency and accountability of public service delivery? 85% said yes, improved हुआ है पहले से, and 15% said no। Outcome of the chi-square test, and it is found that the implementation of Uttar Pradesh Guarantee and 2011 has improved the efficiency and accountability of public service delivery। and citizens are satisfied with the delivery of public service। Uttar Pradesh Rail Guarantee नियम ये है, very satisfied। This is the Likert scale data that is used, and it is found that कि satisfied and very satisfied is around 70%। This is the final outcome। and assessment of citizen centricity in public service delivery। क्या citizen centricity है public service delivery में? There are some questions। improve the quality of life of public service, yes 85% हाँ improve हुआ है। improvement involvement of citizen in service design, no, around 65% says कि सिटीजन को इन्वॉल्व ही नहीं करते सर्विस डिजाइन में, जो गवर्नमेंट चाहे वो प्रोवाइड करे, सिटीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इवन टेस्टिंग ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेन अराउंड 15% ही, केवल 16% ही कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। मे भी रीज़न हो सकता था जो है, मे भी रीज़न कि सबको सर्विसेज टाइम में ही मिल जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो विद इन टाइम सर्विस मिल जाती है, बट 15.8% ने कंप्लेन रजिस्टर किया। तो मीडियम ऑफ रजिस्ट्रेशन बताऊँ कि मीडियम जो उन्होंने रजिस्टर किया 15%, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने IGRS पोर्टल किया, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम। इस पोर्टल पे क्या होता है, विद इन 30 days सर्विसेज विल बी कंप्लेन विल बी रिजॉल्व। और कुछ लोगों ने बाई फेस टू फेस किया, बाई लेटर किया, बाई ईमेल किया, ऑन सोशल मीडिया भी करते हैं कुछ लोग। एंड देन सिटीजन पोर्टल या ई साथी आते हैं। ड्यूरेशन आप ग्रीवेंस रिड्यूसल ये इतने टाइम का जो ड्यूरेशन है, तो इसमें ये फाउंड किया गया कि अराउंड 36% लोगों ने बोला कि 10 to 20 दिन ग्रीवेंस रिड्यूसल होता है, मतलब ग्रीवेंस उनको सॉल्व की जाती है। और ये तहसील पे क्या है, कंप्लेन मॉनिटरिंग सेल बना है। और IGRS पे क्या होता है, सब कुछ कंप्लेन ऑनलाइन हो रही है, अगर आप टाइम के अंदर वो ग्रीवेंसेस मतलब रिजॉल्व नहीं हुई तो वहाँ पर रेड बॉक्स हो जाता है। और उस बेस पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि यहाँ पर रेटिंग स्केल बनाया, ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम में रेटिंग स्केल बनाया। रेटिंग स्केल में ये है कि आप विद इन 10 days कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी रेटिंग ऑफिशियल जो कंसर्न है उसको ज़्यादा मिलेगी, 20 days कर रहे हैं तो उसकी रेटिंग अलग है, 15 days कर रहे हो तो ऐसी। ये 100 मार्क्स के रेटिंग सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ने खुद इंप्लीमेंट किया उत्तर प्रदेश में। Effectiveness of government, there is no increase in the effectiveness of government reduction mechanism after the implementation of the act। मैंने पूछा कि what is the overall effectiveness of government reduction mechanism of the citizens grievances under the उत्तर प्रदेश रेल नियम। तो अराउंड वेरी पुअर में अराउंड 19%, एंड क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो ये रेटेड वेरी पुअर, देन पुअर 39%, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन इज एग्रीड विद द कि ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड। ठीक है, ये फाइंडिंग में है सर, दीज आर द फाइंडिंग जो कि बेसिकली लेजिस्लेटिव मेजर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, एनालिसिस ऑफ द एक्ट इज ऑलरेडी डिस्कसेस विद द कंपैरिजन विद द अदर स्टेट, एंड देन पॉलिसी इनिशिएटिव, सी द पॉलिसी इनिशिएटिव में रियलिस्टिक प्रोजेक्ट एंड CSC 3.0, एंड देन इट वाज
observed that there are some challenges in the implementation of e-service delivery. And these are the low awareness among the citizen, digital divide, lack of digital infrastructure, and issue of cyber security and the data protection. Government should invest in digital infrastructure, provide digital literacy training to the citizen and the officials, implement strong data security measures, apply user-centered design principle to e-service platform. This is the finding of the second objective. Basically, Revenue Department of Uttar Pradesh is implementing the act coordinating with the other department, and this is the organizational structure of the Revenue Department. It is a field level and then headquarter level, and then Board of Revenue is there. And then organizational structure of Common Service Center. Common Service Center, basically, Common Service Center skill is implemented at the top level, central level by the special purpose vehicle, and then it is implemented in state level digital agencies, then district e-governance society, and then village level entrepreneur. Then ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी फ्रॉम यूनिचैनल टू मल्टी चैनल. पहले क्या होता था कि हम ऑफिस में जाते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, हमको सर्विस मिलती है, दैट इज कॉल्ड यूनिचैनल सर्विस डिलीवरी. एंड देन आफ्टर क्या होगा मल्टी चैनल सर्विस डिलीवरी की मतलब हम ऐप से भी सर्विस ले सकते हैं, सीएससी से भी सर्विस ले रहे हैं और बेसिकली अदर इंस्टीट्यूशन से. सी दिस इज द एनालाइज एजुकेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने, ये भी ऑलरेडी डिस्कस है. सी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जनगणना ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी. और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, उसके लिए मैंने अलग अलग डायमेंशंस बनाए थे, जैसे कि अवेयरनेस पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पे क्या है, असेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे क्या है, जैसे कि ई सर्विस होने की वजह से असेसिबिलिटी हैज इंक्रीज, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर की वजह से भी इंक्रीज हुआ. देन मोड ऑफ सर्विस डिलीवरी मतलब ऑल सर्विस इज ऑनलाइन एक्सेप्ट EWS सर्टिफिकेट दैट इज नॉट प्रोवाइडेड ऑनलाइन. फिर यूजर चार्जेस फॉर सर्विस 13 and 50 रुपीज़, बट इज फाउंड दैट लोग ज़्यादा पे करते हैं. इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस मैकेनिज्म, इस पे भी जो फाइंडिंग थी, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस में 62% से यस इट इज इंक्रीज. अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल 85 से यस कि गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल अवेलेबल है. इवन कंप्लेन ऑनलाइन, इवन यहाँ पे सर वर्चुअल असिस्टेंट का सिस्टम भी है. जैसे आप IGRS पोर्टल पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट है, उसको आप अपना कमांड दो एंड ही विल वर्क ऑन योर बिहाफ. इवन आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो. फिर इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, इसके लिए क्या सर्विस टाइम में मिली है, यस. एवरेज एंड मीडियम टाइम टेकन टू डिलीवर, जो स्टिपुलेटेड टाइम डिफाइन था कि 20 दिन 15 दिन में सर्विस मिलेगी, मीडियन और एवरेज टाइम जो फाइंड आउट किया गया वो उससे कम था. प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्विस, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. इम्पैक्ट ऑन ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, staff are polite, treat with dignity and reduce the problem in delivery of public service and presence of service culture. See, these parameters are taken from the World Bank indicator, citizen centricity. Last. These are the basically result, and these are the analysis, role of technology, and examine the impact of public service. This is the basically general public way, trust in service delivery institution, citizen participation, accessibility, awareness. There are different dimensions, and see this is the basically outcome, and this is the policy recommendation. This is the policy recommendation. This is divided in different part. जैसे awareness generation के लिए separate budgetary allocation should be proposed by the government, and then use of social media platforms should be used for the awareness generation. जैसे Twitter, Facebook और other भी वो use किया जा सकता है. Use of ICT tool like SMS service, radio message, like असम गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये बेसिकली ICT का टूल यूज कर रहे हैं, जैसे SMS सर्विस, रेडियो और मैसेजिंग चीज़ें चलती हैं. कोलैबोरेशन विद द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी किया जा सकता है. ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द ऑफिसर, ये फाइंड आउट किया गया कि 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिसर को. और कुछ ऑफिसर तो ऐसे थे जिनको इस एक्ट के बारे में ही नहीं पता था, मतलब अराउंड 85% यस एग्री, हमें पता है. और सैंपल साइज तो बहुत छोटा था. अराउंड 42 ऑफिसर को मैंने सर्वे किया था. 55 के अराउंड में 4 तहसील में ऑफिशियल थे, बट 42 या 43 के अराउंड मैंने सर्वे किया, तो उसमें से कुछ 15% ऑफिशियल सेड दैट कि हमें इस बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है इस एक्ट के बारे में. तो देयर इज नीड ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द ऑफिशियल्स. इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी यूपी में क्या किया गया है, अभी 1-2 जगह तहसीलों में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि लोकल जो पंचायत सहायक होते हैं उनसे बोला गया है कि आप अपने पंचायत ऑफिस में ये सर्विस प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हो सिटीजन्स को, जाने की जरूरत ना पड़े. फिर अवेयरनेस जनरेशन इन लोकल, हाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो अपने लोकल लैंग्वेज में दे रही है. जैसे हमको भोजपुरी समझ में आ रही सपोज, तो हमें उसी लैंग्वेज में क्यों नहीं मतलब कम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि आप जब रूरल एरिया में जाओगे तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा किया है. और मनदीप सिंह, ही इज द बेसिकली चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट कमीशन, राइट टू सर्विस,
मतलब वहाँ पे सेपरेट कमीशन है, उसके हेड है, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइज वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप एंड सेमिनार ये किससे बोला है इन्होंने? सर ये कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला तो ये आप बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस कराया था इस इशू पे। नहीं, तो अगर आप साइटेशन दे रहे हैं हाँ। तो डॉक्यूमेंट का साइटेशन देंगे। अच्छा अगर आप इनका साइटेशन दे रहे हैं तो उसका साइटेशन प्रॉपर देंगे, किस ईयर की बात है, अगर हाँ, इसको सर। दिखाना चाहते हैं। हाँ वो सर किसी का भी लास्ट नाम आप लिखे नहीं वो मतलब सर पीपीटी में शॉर्ट में लिखा था, हम्म। तो जब मैं वो करूँगा तो वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस में जो थीम था और जो ईयर था और ये जो पूरा कोटेशन के साथ वहाँ पे मेंशन करेंगे सर। यहाँ पे क्या था कि 60 के लिए मैंने बस ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मेंशन कर लिया था सर, सो दैट कि आई कैन एक्सप्लेन इट। फिर लोगो एंड टैगलाइन कर्नाटका में क्या है और तमिलनाडु में कि वहाँ पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक टैगलाइन है, ठीक है, कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, ऐसा कुछ टैगलाइन है। तो इससे क्या होता है कि सिटीजन या लोगों के दिमाग में जाता है कि हाँ ये टैगलाइन है, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। तो एक टैगलाइन का सिस्टम भी किया जा सकता है, अदर स्टेट ने किया है। फिर एसेसिबिलिटी के लिए पंचायत सहायक को मैंने बोला। हाँ सेकंड क्या है कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी ऑफ द सर्विस। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 384 गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 384 सर्विस को नोटिफाई किया, बट वो थ्रू 260 सर्विसेज ही ऑनलाइन दे रहे हैं, उसमें से भी आधे की वेबसाइट नहीं चल रही है। तो इसको ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में सब सर्विसेज को ट्रांसफर कर दे। मोबाइल सर्विस जैसे अजरबैजान ने किया कि जो रिमोटली लोकेटेड एरिया है वहाँ पे बस या ट्रेन का सुविधा हो या फिर कोई एक व्हीकल हो जिससे कि ये सर्विस डिलीवर करें। अजरबैजान में ऐसा ही होता है कि जो रिमोट एरिया है वहाँ पे बस जाएगी या ट्रेन जाएगी एक शेड्यूल डे में, एक टाइम डिफाइंड है कि फ्राइडे में जाएगी तो फ्राइडे में वो सर्विस डिलीवर। यहाँ भी है बैंक में, अच्छा बैंक मित्र का कंसेप्ट है, गांव-गांव जाते हैं सब। लीगल रिफॉर्म में ये चीज़ें हैं, राइट टू सर्विस कमीशन का प्रोविजन होना चाहिए लीगल फ्रेमवर्क का। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है सेक्टर में, बट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, तो देयर शुड हैव सम प्रोविजन। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है सेपरेट एक्ट फॉर ई सर्विस डिलीवरी। तो एक्सटर्नल एजेंसी होना चाहिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, प्रोविजन ऑफ तत्काल सर्विस भी होना चाहिए, इंक्लूजन ऑफ सिटीजन फीडबैक, डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विस में, डेवलप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, इन्वेस्ट इन सिक्योर टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज सर्विस डिलीवरी सेंटर, वन स्टॉप शॉप फ्रॉम मल्टी चैनल टू ओमनी चैनल अप्रोच ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब मल्टी चैनल ओमनी चैनल मतलब ये देयर इज मतलब इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि हम फोन पे से गूगल पे में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते बैलेंस में, there is a problem of interoperability in the same day सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में क्या है कि अगर आप ऐप से अप्लाई कर दिया तो आपको सीसी वाले के साथ कि कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपने ई साथी ऐप से अगर सर्विस के लिए अप्लाई किया और सोच रहे हैं कि हम जाके वहाँ से सर्विस के बारे में स्टेटस जाने या प्रिंट कराएं तो यू विल नॉट गेट द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मल्टी चैनल टू ओमनी चैनल अप्रोच, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेड अप्रोच फ्रॉम ट्रांसलेशन ओरिएंटेड अप्रोच, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। अभी क्या है जो इंडिया में लार्जली देखा जाता है, तो हमने क्या किया इसको सर, कुछ नहीं किया, पहले हाथ से लिखते थे, अब मैंने लैपटॉप में लिखा लाके लग गया। बट क्या हमने इसका प्रोसीजर कि प्रोसीजर क्या हमने इसका कट किया, ये अभी भी यहाँ से निकलेगा हेड सर के पास जाएगा, हेड सर से निकलेगा डीन ऑफिस जाएगा, डीन ऑफिस से रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा। क्या हम इसको डायरेक्ट का प्रोसेस कम नहीं कर सकते थे? बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज़ ऑनलाइन करो, बट वो क्या होता है ट्रांसलेशन ओरिएंटेड अप्रोच में हम चल रहे हैं, मतलब फिजिकल चीज़ को हम डिजिटल में बस कन्वर्ट कर रहे हैं। बट क्या हम प्रोसेस को हटा रहे हैं? सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन द 10th रिपोर्ट सेज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या इवन डिपार्टमेंट शुड रिड्यूस द डिलीवरी प्रोसेस फ्रॉम 12 स्टेप टू 3 स्टेप, बट ये नहीं है। जैसे अभी सर्विस की रिकमेंडेशंस है, ये रिकमेंडेशंस आप दे रहे हैं? नहीं सर, ये बेसिकली सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का है। नहीं, ये आपकी स्टडी से रिकमेंड कर रहे हैं आप? हाँ, इस कुछ स्टडी से भी रिकमेंडेशंस हैं और कुछ मैंने सर मतलब पेपर से। तो अगर आप इसको अपनी फाइंडिंग्स से जोड़ के बताएं तो बेटर होगा। अच्छा सर, हाँ, मतलब सेम टाइम वहीं पे मतलब दे रिकमेंडेशन। नहीं, आप यहाँ पे बताइए कि जब आप लिखेंगे इसको तो लिखिए कि आपकी वन ऑफ द फाइंडिंग्स ये थी कि बजट कम है, Yes. इसलिए सेपरेट बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। अच्छा, वहीं पे मेंशन हाँ। करना, ठीक सर। क्योंकि अगर आप ऐसे सजेशंस होते हैं, हाँ। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है कि जब आप अपनी फाइंडिंग्स से हाँ, हाँ। कुछ रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ इसका हाँ। सॉल्यूशन रेकमेंड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब लाइक कि जस्ट फाइंडिंग के नीचे ही इसको मेंशन कर दें। नहीं, अलग से पॉइंट आएगा आपका, अच्छा। रिकमेंडेशन का पॉइंट तो अलग से आएगा ही, हाँ, हाँ, हाँ। बट आप उसको रिलेट करेंगे अपनी फाइंडिंग्स से। अच्छा, यस, ओके सर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड देन
इन लोगों का मैंने सर नाम मेंशन किया है, जस्ट आई विल मेंशन द प्रॉपर साइटेशन, ठीक है। मैंने बस ओनली याद रहे कि क्लाउड पॉलिसी मिस्टर श्रीनिवास, ही इज द बेसिकली सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एक्स सेक्रेटरी, तो उनका मैं ये आप क्लियर कट मेंशन कर देंगे। Then district administration should use YouTube chatbot and virtual assistant, but virtual assistant given Redson में यूज हो रहा है, सर्विस डिलीवरी में हम यूज नहीं कर रहे हैं बेसिकली सर्विस एप्लीकेशन के लिए। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए ये चीज़ें हैं सर, लाइक कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए कर्नाटका में अलग से पैरामीटर है, जो बेस्ट SDM या DM उनको अवार्ड दिया जाता है, ऐसा चीज़ें रिवार्ड वाला सिस्टम भी होना चाहिए। तो टाइम बाउंड के लिए क्या करना है कि यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड मशीन लर्निंग का यूज किया जा सकता है फॉर सर्विस डिलीवरी, एंड द सेम टाइम की रिव्यू ऑफ द टाइमलाइन फॉर सर्विस। जैसे यूपी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो यू हैव टू वेट फॉर 20 days, बट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा एंड उत्तराखंड दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस विद 7 days। तो should यूपी गवर्नमेंट शुड आई थिंक रिव्यू दिस प्रोविजंस एंड बेसिकली ऑटोमेटिक अपील सिस्टम। अभी क्या होता है कि आपको 30 दिन के अंदर सर्विस नहीं मिली तो आपको खुद से जाके अप्लाई करना होगा, बट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 900 सर्विस में ये कर दिया कि अगर 30 दिन के अंदर सर्विस नहीं मिल रही तो ऑटोमेटिक अपील सिस्टम में चला जाएगा, कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक अपील सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर पंजाब ने क्या किया कि सिंगल अपील अथॉरिटी कर दिया। क्या था सर कि जैसे इसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 tier अपील अथॉरिटी है, तो इसमें क्या होता था कि पेंडिंग डिसीजन बहुत ज़्यादा होता था। डिसीजन को फास्टर करने के लिए 2020 में इन्होंने रिफॉर्म किया, सिंगल अपील अथॉरिटी किया, और फिर प्रोसीजर के लिए मूव फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव अप्रोच, लाइक सिंगापुर स्टेट हैज़ डन दैट, सिंगापुर कंट्री हैज़ डन द सेम, एंड क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल सिग्नेचर टू बी यूज टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट, लाइक जो फॉल्स डॉक्यूमेंट का केस आया था वहाँ पे ये रिकमेंडेशंस कैन बी यूज्ड। डिजिटल सिग्नेचर्स तो अभी भी यूज हो रहा है। हाँ यूज़ हो रहा है, बट लाइक जो सिटीजन दे रहा है सर वहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ लाइक कि ऑथेंटिकेट कर सर सर्विस डिलीवरी में तो यूज कर रहे हैं, बट जो ग्रीवेंस रेड्यूसल है उसमें ये अभी सब चीज़ें यूज़ नहीं की जा रही है, तो वहाँ पे भी ये यूज किया जा सकता है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है काफ़ी सिंपल होना चाहिए। SS कोठारी बेसिकली ही इज़ द पॉलिसी एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन से ही अटैच थे। थैंक यू।